रात को या फिर मैं जब पढ़ाने जाती थी बच्चों को तो मैं बस से कम्यूट करती थी, तो मेरे डेली कम्यूट के वक्त मैं अपने फोन पे लगी रहती थी कि आपके जो PYQs है शायद बस बस में रहती थी तो मैं ईयरफोन्स नहीं यूज कर पाती थी, तो बस देख लेती थी पूरा एकदम 2x स्पीड पे यूट्यूब में कि क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि आप तो फिर आंसर्स वहां पर बोल ही देते थे। या फिर रात को सोते वक्त, मतलब आफ्टर आई यूज्ड टू लाई डाउन, उसके बाद मैं काफी देर तक जगी रहती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, हर साल लाखों लोग नेट जेआरएफ की परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ चंद ही लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते हैं। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ में है सोहिनी मित्र, जिन्होंने इस बार 2022 यूजीसी नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.51 परसेंटाइल के साथ में। इनका जो विषय है वो है हिस्ट्री। तो आज हम सोहिनी से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई फॉर द पेपर 1, पेपर 2, इनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा, इनकी जेआरएफ की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये सारी बातचीत है जो आज हम सोहिनी से करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं सोहिनी आपका हमारे जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म हेलो सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू इस सो सक्सेस के मच। लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, तो सोहिनी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में कुछ बताइए हमारे स्टूडेंट को कि आप कहाँ से हैं, और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी है, अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं। Right. As you introduced me, I'm Shohini Mitro. I did my schooling I'm from Kolkata, West Bengal. I did my schooling from Kolkata itself, from South Point School and South Point High School. Thereafter, I did my graduation in history with honors from Jadavpur University, which is also in Kolkata. I did my masters and thereafter MPhil from the same university, and currently I'm pursuing PhD from Jadavpur University only in military history under the supervision of Professor Kaushik Roy. And I just completed my first year of PhD in September. दैट्स ग्रेट। सोहिनी, मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने पहली बार रिजल्ट देखा जेआरएफ का तो कैसा फील हुआ, कैसा लगा जेआरएफ करके, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका। I actually couldn't believe my eyes. I mean, I remember when the first final answer key had come, I knew that the results could come out any given day. And the next day, the chairperson of UGC declared on Twitter that the next day the results were going to come. And I didn't tell anyone in my family, but I was being so nervous and very tense all along. And on the day of the result, I learned from one of the groups on Telegram, which I used to follow religiously, that the results were out. So I came and I opened my desktop. For some reason, the server was down and I couldn't check my results for almost half an hour to 45 minutes. So I had just logged in into the thing with my credentials and stuff. And I was just awaiting for the site to open. And during that, I was technically trying to do the same using my phone also. So my head was down and I was actually sitting here. And suddenly I looked up and I saw it. I couldn't believe my eyes. My mother was in the next room. I went to her and I called her that, Mommy, please check karo ki whether I'm seeing the right thing or not. And she sort of confirmed. And I was really elated. Like, I couldn't believe my eyes because ever since the examination, before the examination, I still thought that maybe JRF was possible, but right after the examination, I was a bit skeptical because there were a few questions I wasn't sure of, and I had not even checked the answer key out of nervousness and all of that. So it was really a wonderful surprise. Like, and I was very, very elated. My entire family was actually. सोहिनी, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जेआरएफ की जो जर्नी है वो कब से स्टार्ट हुई, आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की। राइट। वो बहुत दिनों पहले से तो नहीं था। मुझे क्योंकि लाइक आई वांटेड टू फोकस ऑन रिसर्च एक्सक्लूसिवली। मुझे लग रहा था कि अगर मैं नेट की तरफ फोकस करूंगी तो मेरे रिसर्च थोड़ा सा शायद हैम्पर्ड हो सकता है, बिकॉज आई हैड already done my MPhil and I was sort of determined to get my PhD, like by expanding my MPhil and all of that.
But then I like saw that there were a lot of people who were cracking net JRF, and you know, the financial aspect was also involved in that. I knew that the amount of JRF would be very beneficial for my research, because to substitute my expenses and everything, and also for financial independence, I was relying on tuitions. I used to provide tuitions to high school kids, so that used to consume a lot of time. So finally, in March, I think March 2022, I decided that I really need to do this. And before that, like, since as I told you, like, this was my second attempt. I had attempted, I had appeared for the examination for the first time in 2020 during the pandemic, because we mostly were at home, and didn't know what exactly would happen thereafter. And I had just, filled in the form, and not really paid much attention to it. So my parents had said, since you have like applied for it, might as well go and sit for the exam, which I did without much of a preparation. So I would not really count that to be a part of the journey. This March, like March 2022 onwards, I decided that no, I have to do this. And I started to do my research, like which sources I should be consulting, which educators I should be following, or which platforms I would be following, or what my strategy would be, how I would be devoting my attention, and how I would be like managing my time, because I was also doing research. So all of these things started to take sort of concrete shape March 2022 onwards. So I would say, yeah, that, like, since then I started to prepare. ओके। तो फाइनली मार्च से आपने स्टार्ट किया और काफी कम टाइम में आपने इस एग्जाम को क्रैक किया है, अगर मैं बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में देखूं, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है जेआरएफ को करने में। तो आपकी पेपर 2 और पेपर 1 की स्ट्रेटेजी मैं सेपरेटली पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, पेपर 2 के लिए आपने कौन-कौन से सोर्सेस, किस एजुकेटर को आपने फॉलो किया और क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी पेपर 2 हिस्ट्री के लिए? Okay, yeah, of course. So since I've been studying history for quite some time since graduation, during my plus two, I didn't have history actually in school. So that was actually an impediment for me. And I remember in March only, I had this discussion with one of my seniors that who had cracked net, that you had history throughout your school life, and thereafter you came to your graduation, and you have been studying history for a very long time, but I haven't been doing that. And since I had that at the back of my mind, I knew that I needed to increase my level of studying to be at par with them, because though from graduation I have been studying history, and I'm really like grateful to all the professors at Jadavpur University, because they teach the concepts really well, and they try their level best to make a student interested in research. The reason why maybe I became so interested in research and involved in it, but while doing that, and that is simply because of my procrastination, because all the teachers used to ask us to do all the readings very thoroughly, but while studying certain themes, I might have left out some vital things which are very important for the net examination. So I didn't have much of a clue when it came to ancient India, especially, or say medieval India. So I was pretty nervous, and in that nervousness also, I guess, I mean, that nervousness sort of helped me, because right from the beginning I knew that I would have to put in extra effort in comparison to others, right? So I started from the very basics. Like, there is one book that I would like to refer to, or I would like to recommend to everyone who's watching this, the Tamil Nadu textbooks. I 11th mean, क्लास की for हिस्ट्री। classes 11 and 12, this is something that I discovered in 2020. Like, I remember I had not studied a thing before the 2020 examination, but 2 days prior to the examination, I started to go through those two books. And those were the only things that I studied before the examination. But I saw that there were vital questions which were coming from that book. So I started from that, because, back to the basics. Yeah. So after that, since I used to teach students, I sort of had an idea what NCERT books were like.
So that sort of already had happened. After Tamil Nadu books, I knew that I would have to do my textbook reading. But for ancient India, I will not say that I was, very sincere in my effort. During my UG classes, again, I'll thank my professors rather who had taught me during the UG days. They had referred to two very important books. One was Ranubir Chakraborty's Exploring Ancient India, and the other one is Upinder Singh's Ancient India. So I had read those two books during my UG days, maybe not exhaustively, but I had done my readings. So this time, I'm so thankful to you actually to teach on previously. So I started to follow your lectures, the questions, the concepts, and the explanations. Like they were very, very essential and very beneficial to me. And I started to take down notes, like handwritten notes. And I had this one diary, which is now almost full. So for ancient India, I relied very heavily on your notes, PYQs, and explanations. And simultaneously, those areas which I felt that needed more attention, I sort of tried to substantiate those parts with thorough reading from these books. Maybe like when it came to the Indus Valley civilization, that is very beautifully written in Upinder Singh's book. Or for the South Indian kingdoms, since I'm a Bengali, I'm not conversant with the Dravidian languages. So language used to be an impediment for me, even when it came to the names. So for that, I relied heavily on Tamil Nadu books. So they helped me for ancient India. For medieval India, from cover to cover, I had referred to Satish Chandra's book. Like it was very essential. And this is one thing that my supervisor has taught me, that whenever you are reading a book, be it a textbook also, you should try to understand the underlining argument of the text. And since I was doing that, I was constantly trying to engage with the book, that I needed to know the argument and also cull in enough information. That was very essential. So when I did that, and also I had lost the book which I had at home. So I took the book from a library. I couldn't even do my markings there. So I sometimes took down notes, whichever areas I found to be important. But other than that, I tried to engage with all the PYQs that you had taught for the Delhi Sultanate and Mughal India, and also the regional sultanates also. So I remember I had this was another diary, which is again almost full. Like I had taken down all the notes, the questions, their explanations, and there were some specific things which are not very well covered in the textbooks. For example, the Bhakti and the Sufi movements, the architecture. एक small request Yeah, आपको. I know yeah. आप बंगाल से हैं तो थोड़ा सा हिंदी नहीं होगा, बट ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है ये बहुत ही अच्छी लग रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही क्लियर क्रिस्टल स्ट्रेटेजी है. तो जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनको भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा मतलब बता दो कि हिंदी में, तो वो समझ पाए इस चीज, क्योंकि डेफिनेटली अच्छा, बहुत मुझे हेल्प ये करने डर वाली लग रहा है कि अच्छा अच्छा, मुझे ये डर लग रहा है कि वो लोग शायद मेरी हिंदी नहीं समझ पाएंगे. है. नहीं, वो समझ पाएंगे. ओके, ठीक है. तो हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि मिडीवल इंडिया के लिए मैंने सतीश चंद्रा का बुक एकदम कवर टू कवर अच्छे से पढ़ा था. और उसके साथ आपने जो PYQs किए थे, मतलब हमारे साथ, especially from YouTube, I had like studied, and as I had mentioned that I'm a free learner. I didn't take any subscription because I realized that I didn't have enough time for attending. I wouldn't, मतलब बहुत टाइम नहीं मिलेगा मुझे सारे क्लासेस अटेंड करने के लिए. तो मैंने सोचा कि जितना कंटेंट ऑलरेडी है यूट्यूब में, मैं उसी को इस्तेमाल करूं. तो फॉर दैट मैंने आपके सारे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने एक डायरी में लिख लिया था. और बहुत थारली मैं उसको रिवाइज करती थी.
उस चीज को मैंने 3 बार रिवाइज किया था। जैसे कि बुक मैं शायद सेकंड टाइम थोड़ा बहुत कर पाई, पूरा एकदम कवर टू कवर सेकंड टाइम नहीं पढ़ पाई, लेकिन आपका जो वो नोट्स था वो एंशियंट इंडिया के लिए या फिर मिडिवल इंडिया के लिए मैंने बहुत थारली उसको रिवाइज किया। नाउ कमिंग टू मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन ही मॉडर्न इंडिया पे थी, मुझे लगा कि मैं वो उसको आखिर में करूंगी। और आपने मुझे याद है आप बताते थे कि मॉडर्न इंडिया वो पोर्शन है जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब आप अगर एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो मोरलेस आप कर पाएंगे। और मुझे मतलब अच्छे से करना था लेकिन टाइम उतना नहीं मिला था। तो मैंने क्या किया कि रात को या फिर मैं जब पढ़ाने जाती थी बच्चों को तो मैं बस से कम्यूट करती थी, तो मेरे डेली कम्यूट के वक्त मैं अपने फोन पे लगी रहती थी कि आपके जो PYQs है, शायद बस में रहती थी तो मैं ईयरफोन्स नहीं यूज कर पाती थी, तो बस देख लेती थी पूरा एकदम 2x स्पीड पे यूट्यूब में कि क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि आप तो फिर आंसर्स वहां पर बोल ही देते थे। या फिर रात को सोते वक्त, मतलब आफ्टर आई टू लाई डाउन, उसके बाद मैं काफी देर तक जगी रहती थी। तो तब मैं आपके मॉडर्न इंडिया के जो वेरियस टॉपिक्स के ऊपर बेस करके जो क्वेश्चंस है वो सब मैं बहुत थारली करती थी। तो वो बहुत हेल्प किया था मुझे। और मास्टर्स करते वक्त ही मैंने शेखर बंदोपाध्याय के बुक जो थे वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो इस बार मैंने जो किया कि शेखर बंदोपाध्याय के जो बुक है प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टरवर्ड्स, उसको एकदम मैंने कवर टू कवर पढ़ा, सेम स्ट्रेटेजी यूज करके कि आर्ग्यूमेंट समझना है। और सिंस ये मेरा ही बुक था मैं मार्क करती थी, और जो भी वाइटल पॉइंट्स था, जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे मिलता था वो मैं मार्जिन में लिख लेती थी। इसके साथ PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ऑलरेडी करवाते थे। लेकिन मैंने आर गुप्ता का एक बुक आता है जिसमें एक्सप्लेनेशंस भी बहुत अच्छे से दिया जाता है, वो मैं बहुत थारली प्रैक्टिस की थी। लास्ट 10 जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसको मैंने हाथ से लिखना स्टार्ट किया, फिर देखा कि टाइम नहीं मिल रहा है, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो मैं वो बस रीड करके ही फिर 2-3 बार मैंने प्रैक्टिस किया। सो रफली यही मेरा स्ट्रैटेजी था पेपर 2 के लिए, and somehow it clicked by maybe God's grace, I don't know. मैं एक लाइन आपके लिए बोलना चाहूंगा। जितना मैंने आपके स्ट्रेटेजी सुना एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, और मैंने भी JRF काफी 2-3 साल पहले क्वालिफाई किया था। जस्ट वन लाइन एंड सारे स्टूडेंट को वो बोलना चाहता हूँ कि पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, वरना मत पढ़ो। बस एक ही लाइन है ना, ये ऐसे पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी का JRF रुकेगा आपका, इवन कोई एग्जाम आपका रुक ही नहीं सकता। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना हर एग्जाम को क्वालिफाई करवा देगा। जस्ट वन। अब मैं आता हूँ पेपर 1 पे। सोहिनी की पेपर 1 के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही और कैसे आपने पेपर 1 को क्वालिफाई किया? Right. Again, I'll sort of go back to 2020. उसमें मैंने कुछ बिना ही पढ़ के मैं चली गई थी। लेकिन एक चीज मुझे उस एग्जाम से पता चला कि जैसे पेपर 1 मैंने किया, मैथ्स सेक्शन जो है वो मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन और जो कॉम्प्रिहेंशन था, उन तीनों चीजों में मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 10+2 में मेरा हिस्ट्री नहीं था, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। और मैंने हिस्ट्री इसलिए नहीं लिया था 10+2 में क्योंकि वो मैथ्स के साथ क्लैश कर रही थी कि इधर हिस्ट्री या फिर मैथ्स। तो मैंने मैथ्स लिया था क्योंकि मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता था उस वक्त। तो इसीलिए उसके लिए मैं बताऊंगी कि actually after I cracked this, many of my colleagues, friends, they also came to me and they were like talking about their experience with the question paper this year. तो उन्होंने कहा कि मैथ सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो 2020 में मैंने देख लिया था कि जनरल पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और मैं कैसे उसको टैकल कर पाती हूँ। तो मैथ सेक्शन के लिए और वो DI के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे हर दिन 1 से 2 DIs सॉल्व करने ही है एट एनी गिवन कॉस्ट। तो मैं मतलब ट्यूशन पढ़ा के आती थी रात को 10 बजे, 10 से 11 मेरा यही टारगेट था कि 10 से 10:30 तक मुझे 2 DI सॉल्व करने हैं। इफ पॉसिबल 1 या 2 मैथ्स के कुछ मतलब वो जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसको सॉल्व करना है, और 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करने हैं। तो वो मैं हर दिन करती थी। Like that went on for about like 2 to 3 months, I guess.
लास्ट 2 to 3 months मैंने उसको बहुत ही अच्छे से किया। मैं एक्चुअली जो सेकंड पेपर है उसको मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, मार्च ऑनवर्ड्स, जब 2022 की बात कर रही हूँ। मार्च ऑनवर्ड्स मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, तो आई डिसाइडेड कि हिस्ट्री तो मेरा भाई बहुत वीक है क्योंकि कम ही पढ़ी हूँ, लेकिन ये पेपर है जो मुझे जेआरएफ दिलवा सकती है, या फिर एटलीस्ट नेट तो दिलवा सकती है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन इनिशियली मैंने इसी पर किया। तो आई डिसाइडेड कि मुझे पहले समझना है कि रिसोर्सेज मेरा क्या होगा, और मैं अपना रिसर्च करी। मोस्टली मैंने यूट्यूब से ही अपना पढ़ाई किया, जैसे मैंने कहा। आई डिड नॉट रेफर टू एनी बुक फॉर पेपर वन, नॉट अ सिंगल बुक एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन पेपर्स में भी। तो एक्चुअली दो एजुकेटर्स है जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत इंडेटेड हूँ उनके उनसे। तो एक है नवदीप कौर मैम, और दूसरे है तलवीर सिंह सर। तो उन दोनों को मैंने यूट्यूब पे ही मोस्टली बहुत अच्छे से फॉलो किया, और वो जो एडटेक प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं उसको वहां पर मैंने कुछ क्लासेस लिए, जैसे कि आपके लिए भी मैंने कभी कभी स्पेशल क्लासेस लिए, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता था। तो नवदीप कौर मैम ने बहुत अच्छे से मतलब बहुत, सिंस मेरा टाइम कम था, एक एक क्लास में उन्होंने पूरा टॉपिक्स उन्होंने क्लियर किया, मतलब कवर किया। 10 में से शायद आई थिंक 6 to 7 टॉपिक्स जो है वो अच्छे से पढ़ना पड़ता है, जैसे कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो सब कुछ। तो उन्होंने एक एक क्लास में क्लियर मतलब कवर किया। मैंने उसको अगेन आई मेड अ लाइक दिस डायरी थिंग, जिस वो 5 सब्जेक्ट्स नोटबुक्स होते हैं, हर सब्जेक्ट को मैंने 2 में डिवाइड किया। सो आई हैड लाइक द एंटायर बुक डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। तो हर पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरा जितना भी नोट्स था, हैंड रिटन नोट्स, उनसे ही मैं पढ़ के एकदम मैंने नोट्स बनाया अच्छे से। वैसे ही मैं करती गई। जो मैथ्स पोर्शन था या फिर वो कॉम्प्रिहेंशन, उसमें मैं बस सॉल्व करती थी, लेकिन उसी में करती थी। वो खत्म हो गया तो मैंने दूसरा कॉपी यूज करना स्टार्ट किया। तो वो जो नोट्स था, क्रिस्प नोट्स था, ऑलमोस्ट 10 to 20 पेजेस में मेरा रफली वो हो गया था। वही मैं बार बार रिवाइज करती थी। फिर तलवीर सर ने लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे वेरियस शिफ्ट्स के, वो उन्होंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। वो बहुत मदद में मतलब बहुत हेल्प हुई, और बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल एज पीवाईक्यूज उन्होंने सॉल्व कराए मैराथन क्लासेस में बहुत सारे। तो उसमें मेरा कंसेप्ट भी क्लियर हुआ, और मैं उसको सॉल्व करती थी तो मेरा सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ गया। तो वही मैं पेपर वन के लिए की, एंड दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प मी। और मैंने जैसे कहा कि जैसे टाइम मुझे मिलता था, जहां पर भी, सोते वक्त, जागते वक्त, मतलब कभी मैं कहीं पर जा रही हूँ, या फिर बस स्टैंड में मैं खड़ी हूँ, या फिर ऑटो में ट्रैवल कर रही हूँ, या फिर अगर किसी कहीं पर भी मैं हूँ, मैं बस उसको ट्राई करती थी कि ओवर एंड ओवर अगेन करके मैं उसको रिवाइज करूँ। एक ही क्वेश्चन शायद मैं बार बार करती थी, क्योंकि एक बार करने से याद नहीं रहता। मैं तो मतलब उतना जीनियस नहीं हूँ, तो मतलब इंडेलिबल मेमोरी भी नहीं है। तो बार बार ही पढ़ना जरूरी होता था। तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत कम मटेरियल्स रखिए, खुद अगर बनाते हैं अपने नोट्स बहुत अच्छी बात है, और उसको बार बार दोहराइए। और सोचना बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय सुपरवाइजर, हु ऑलवेज टेल्स मी टू लाइक यू नो you read 50%, the other 50% should involve like writing and reflecting. Think करना जरूरी है। आप वॉक पे चले जाइए, बस सोचिए क्या पढ़े हैं आप, वो करना जरूरी है। वो मैं काफी करती थी, थोड़ा बहुत करके। यही मेरा मोस्टली स्ट्रैटेजी था। ग्रेट। आपकी स्ट्रेटजी पेपर वन की भी बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल है, बहुत ही सटीक वाली रणनीति है आपकी, काबिल तारीफ। एंड थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट हमारे डिस्कशन पे आना चाहूंगा कि एग्जाम के दौरान लाइक जो 3 आवर्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। आप कुछ भी पढ़ के जाओ, बेग लेकिन योर अगर पार्डन, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपने कुछ कहा, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक आप पूरे साल पढ़ लो, लेकिन अगर वो 3 घंटे आपने अच्छे से नहीं खेला, उन 3 आवर्स को आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, तो सारी मेहनत कई बार वेस्ट हो जाती है स्टूडेंट्स की। तो वो टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम मैनेजमेंट कैसा रहा था आपका पेपर के दौरान, तो उसका कुछ आप हमारे स्टूडेंट को बता सकते ओके।
एक जो मेरा लैप्स हुआ इस पूरे स्ट्रैटेजी के दौरान, वो है कि मैं मॉक टेस्ट मैं देना चाहती थी, लेकिन वो पूरे लेंथ का मॉक टेस्ट मैं नहीं दे पाई क्योंकि टाइम नहीं था अगेन। लेकिन बहुत काम आया आपके जेआरएफ अड्डे का वो जो डेली क्विजेस था, हम्म। मैं वो ऑलमोस्ट हर रोज लेती थी। तो उसमें तो एक टाइम था, तो मैं कोशिश करती थी कि जितना जल्दी हो सके। इसके अलावा मैंने जो बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, आप 15 सेकेंड्स देते थे, या हम्म। फिर बाकी भी मैं जब पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा सा टाइम में करने की, डीवाई जैसे कि टाइम पकड़ के करती थी कि नहीं, मुझे 10 से 15 मिनट्स के अंदर ही करना है, और वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं 5 से 7 मिनट्स नहीं दे पाऊंगी। सो दीज वर दी ओनली few things that I had practiced before applying, like appearing for the examination. तो एग्जामिनेशन के दौरान मेरा जो शायद मुझे ये पता नहीं है, वो जो एमसीक्यूज आते हैं शायद जम्बल्ड वे में आते हैं कि मेरा जैसे आता है, मेरे नेक्स्ट क्यूबिकल में जो बैठा है उसका शायद दूसरा आता है, मुझे पता नहीं है। आई एम जस्ट गेसिंग बिकॉज वरना तो बहुत आसान ऐसा हो ही आता है। जाएगी। राइट। तो मेरा वाला में पहले ही डीआई आया था। आई वाज वेरी इलेटेड कि चलो इसको तो मैं 15 मिनट्स में निपटा लूंगी, उसके बाद जो करना है करो। फर्स्ट 15 मिनट्स डीवाई इतना सॉल्व किया, और जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी में मेरा 15 मिनट गया। आई कुडंट गेट इट करेक्ट, मतलब जो आंसर आ रहा था वो वहां पर नहीं था, वो चार जो ऑप्शंस था, एंड आई वाज लाइक ओके मैं तो गई। लेकिन अगेन आई गो बैक टू माय स्कूल डेज। क्लास 7 में मेरे एक मैथ्स टीचर थे जिन्होंने मुझे मैथ्स में इतना मतलब इंटरेस्ट उन्होंने ही मुझे इतना इंटरेस्टेड किया मैथ्स में। उन्होंने कहा था कि किसी भी एग्जाम के दौरान अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, तो यू जस्ट लीव इट देन एंड देयर एंड जस्ट प्रोसीड विदाउट थिंकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन। So after 15 minutes, I just decided that I cannot go on. This is the mistake that many of the other students had done this time. तो मैंने उसी को वहीं पर छोड़ दिया, और मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो था, पहले पेपर 1 मैंने सॉल्व किया, फिर मैंने पेपर 2 सॉल्व किया। तो उसके बाद मैंने देखा कि 4:30, मतलब मेरा सेकंड शिफ्ट में था, 4:30 में मेरा पूरा पेपर हो गया था एक्सेप्ट फॉर 7 क्वेश्चंस। मैंने रिस्क नहीं लिया कि मैं बाकी का सम्स भी मैंने पेपर 1 में नहीं किया। तो देयर वर लाइक 7 क्वेश्चंस, 2 मैथ्स के और बाकी 5 वो डीआई के। तो वो जो हाफ एन आवर था, उस वक्त मैंने डीआई लिया कि ठीक है चलो अब करती हूँ। Within 15 minutes, I remember I completed DI सारा आंसर्स। मतलब मैं समझ पा रही थी कि शायद सही ही है क्योंकि ऑप्शंस मैच हो रहा था, और बाकी जो 2 सम्स थे मुझे लगा कि नहीं होगा शायद। लेकिन वेरी वियर्डली, क्योंकि मैंने पहले भी थोड़ा बहुत सॉल्व किया था, वो हो गया। एंड आई हैड लाइक 10 मिनट्स टू स्पेयर, जिसमें मैं रिवाइज कर सकती थी, लेकिन उतना तो हो नहीं पाता। तो मैंने बस चेक किया कि सारा क्वेश्चंस मैंने किया कि नहीं किया। तो लाइक जब मैं वो पूरा बुक्स पढ़ती थी ना, कवर टू कवर, उतना टाइम नहीं होता था, तो मैंने यूट्यूब से सीखा कि फास्ट रीडिंग, स्पीड रीडिंग कैसे करते हैं। तो दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प मी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कि स्पीड से पढ़ना है क्वेश्चंस। और क्योंकि सॉल्व की थी क्वेश्चन आंसर्स घर पे भी, टाइम से नहीं लेकिन मोरलेस किया था, वही मुझे आई गेस काम आया था एग्जामिनेशन में भी, कि हाँ मुझे पता चल रहा था कि कैसे क्या करना है, इसको ऐसे करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो आई गेस वो काम आया था। लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मुझे जितना, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से पता चला कि इट्स लाइक 50% नॉलेज, 30% guesswork, and 20% luck. If your luck doesn't favor, I don't think it would like work, because बहुत समय ऐसे होता था कि एक क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स दिए जाते थे, और फिर कोड से वहां पर 4 ऑप्शंस था कि लाइक स्टेटमेंट्स 2 3, या फिर वट एवर, जो कुछ भी था, A B C E ये है, या फिर डी को हटा दिया, इसमें किसी में ई को हटा दिया। जो 5 स्टेटमेंट्स थे उनमें से मैं शायद मैक्सिमम 3 या 4 स्टेटमेंट्स ही जानती थी, फिफ्थ वाला मुझे आता ही नहीं था। फिर मुझे गेस वर्क करना पड़ता था, जितना भी कंसेप्चुअली मैंने अपने आप को डेवलप किया था उसके ऊपर। तो आई गेस दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प ड्यूरिंग द पेपर। आपने बात बोली थी किस्मत वाली, तो मेरे को एक लाइन याद आ रही है किस्मत के ऊपर। आ, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो ब्रेव होते हैं। लाइक
मतलब आपके जो एफर्ट्स हैं तभी आपकी किस्मत ने साथ दिया, वरना जो आपका जो केस था वो डीआई वाला, वो काफी स्टूडेंट के साथ में होता है। लेकिन राइट। जो आपने उसको लास्ट में बाउंस बैक किया आपने, वो हर स्टूडेंट नहीं कर पाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट था जो आपने जो किया पेपर के दौरान। मैं सारे स्टूडेंट से ये बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा केस हो तो डीआई को पहले मत करना। जो क्वेश्चन आपको नहीं बन पा रहे उनको लास्ट में ही करना, वरना तो पेपर बिगड़ जाता है। बिल्कुल। इसके बाद में सोहिनी, टाइम थोड़ा सा कम है तो हमें शायद दोबारा से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिंक भेजता हूँ, देन हम फिर दोबारा से ज्वाइन करें। ओके ओके श्योर। सो सोहिनी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था, मोटिवेट कैसे होते थे? क्योंकि ये जो जर्नी होती है काफी लंबी होती है, और कई बार लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, कई बार हौसला टूटता है। तो फिर से खड़े होने की हिम्मत कहाँ से आई आपने? कैसे इस जर्नी को आपने कंसिस्टेंटली फॉलो किया और क्लियर किया जाए? राइट। जब मैंने एकदम निर्णय लिया कि मार्च में कि करना ही है इसको, तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज कि वो जो जेआरएफ की जो अमाउंट है, मुझे लगा कि ये मुझे रिसर्च, मैंने जैसे कि कहा कि मेरा फोकस हमेशा होता था रिसर्च पे, इसीलिए मैं नेट जेआरएफ के बारे में उतना सोचती नहीं थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही काम आया है। एंड यू नो माय स्टूडेंट्स हैव बीन सो कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल, उनके मोस्ट ऑफ देयर पेरेंट्स भी। लेकिन वो था कि उससे मुझे जितना मतलब फाइनेंशियल हेल्प हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा हो सकता है अगर मुझे जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा, मैं अपना रिसर्च बेटर कर सकती हूँ। तो दैट वाज द प्रिलिमिनरी मोटिवेशन, तो मैंने उस वक्त शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि बोला जाता है ना कि आप अगर कुछ कर पाए हैं तो वो सिर्फ आपके वजह से नहीं हो सकता है। many people were there who kept on motivating me। जैसे कि मेरे फैमिली, आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आई बीइंग देयर, मतलब द ओनली डॉटर इन द हाउस, ओनली चाइल्ड रादर, माय एंटायर फैमिली डोट्स ऑन मी। तो जब भी मैं कभी होता था, मैं बोलती थी नहीं होगा, और नहीं पढ़ पा रही हूँ, या फिर इतना कम समय में नहीं होता है, मेरे घर पे थोड़ा बहुत रेनोवेशन चल रहा है अभी, तो इधर से मतलब मेरे सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स इधर से उधर हो रहे हैं, घर शिफ्ट, मतलब रूम्स शिफ्ट कर रहे हैं हम। तो बहुत रोती थी, बहुत कुछ करती थी। बट माय पेरेंट्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स, वो मुझे बहुत ही सपोर्ट किए, मतलब थ्रू आउट। घर का कुछ काम नहीं करना पड़ता था, या फिर कभी भी अगर डिमोटिवेटेड फील करती थी, सो दे वर देयर एट होम। Then I had my research group, मेरे सुपरवाइजर, उन्हें जब से पता चला कि मैं कर रही हूँ ये, they kept me grounded and they kept me motivated also। मुझे याद है, मैं यूनिवर्सिटी जब जाती थी रिसर्च के मीटिंग्स के वजह से या फिर कुछ दूसरे काम के वजह से, तब वो लोग, मैं बोलती थी कि आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, तो क्वेश्चंस वो लोग मुझे पूछते थे, स्पेशली द वंस हु ऑलरेडी लाइक क्रैक्ड नेट या फिर जेआरएफ, द वंस हु आर सीनियर टू मी। तो वो लोग क्वेश्चंस पूछते थे, अगर सही होता था सो तब तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती ही थी। लेकिन अगर गलती होती थी तो मुझे पता था कि घर पे आके मुझे उन एरियाज पे वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लेटेस्ट साइट्स है, कहाँ से क्या मिलता है, वो सब मुझे इन्हीं सेशंस के दौरान पता चला, या फिर रीजनल किंगडम्स कैसे पढ़ना है। दे केप्ट मी वेरी मोटिवेटेड। एंड देयर वर लाइक, मेरा सोशल लाइफ बहुत डिसरप्टेड हुआ, क्योंकि इस दौरान इतना कम समय में अगर मुझे करना है तो ज्यादा दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा पाती थी, फोन पे भी बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाती थी, सोशल फंक्शंस में नहीं जा पाती थी। लेकिन देयर वर अ फ्यू फ्रेंड्स, 3 to 4 ऑफ देम बहुत ही क्लोज है, और उन्हें पता है वो लोग कौन है, एंड दे लाइक केप्ट मी मोटिवेटेड। कभी भी मैं बोलती हूँ नहीं इट्स इम्पॉसिबल, एंड दे आर लाइक ठीक है, इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, लिंक करते रहो। एंड समवन लाइक नहीं नहीं, इस बार ही होगा, जरूर होगा, तुम बस तुम इतना मेहनत करी हो तो होगा तो जरूर। एंड दे सॉर्ट ऑफ केप्ट माई स्पिरिट्स रियली हाई। तो मैं इन सबको अगर थैंक नहीं करूंगी, या फिर इनको अगर मैं मोटिवेशन के हिसाब से नहीं कंसिडर करूंगी, तो वो नहीं होगा।
एक चीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि देयर वर अ लॉट ऑफ सेटबैक्स। ऐसा भी हुआ कि एक एंटायर वीक मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि ये जर्नी काफी लंबी होती थी। मेरा मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि बहुत कुछ होता है। कभी कभार तो रिसर्च की वजह से ही मुझे नेट की पढ़ाई को अलग करके रखना पड़ता है। लेकिन यू नो व्हेन यू आर इनटू इट, एक ऐसा हो जाता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ था कि अगर मैं आई हैड सेट टारगेट्स कि इतने में मुझे इतना करना है। रात को मैं लिख कर रखती थी कि ये मुझे पढ़ना है। तो वो जो टारगेट्स है, वो अगर मैं मीट नहीं कर पाती थी, आई यूज्ड टू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। मैं चिड़चिड़ा हो जाती थी, या फिर बहुत प्रॉब्लम होता था। सो पढ़ने से ही मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा सॉर्टेड हूँ, सबसे ज्यादा शांत हूँ और ठीक ठाक हूँ। और मतलब अच्छा भी लग रहा है, ठीक से नींद आ रही है रात को। सो दैट वाज अ मोटिवेशन इन इटसेल्फ कि वो करना है अपने मेंटल सैनिटी के लिए। और इसके अलावा एजुकेटर्स, आप लोग तो मोटिवेटेड रखते ही थे। मैंने जिन तीनों का नाम लिया, यू इंक्लूडेड, आई मीन आई एम सो थैंकफुल टू ऑल थ्री ऑफ देम। टेलीग्राम चैनल्स में बहुत सारे को एस्पिरेंट्स थे। मैं किसी के साथ इंटरेक्ट इतना नहीं करती थी, लेकिन उनके जो मैसेजेस थे दैट यूज्ड टू कीप मी मोटिवेटेड। और फाइनली एक चीज बताना चाहती हूँ, जब मैंने एकदम शुरू किया था, मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी जब डिटरमाइन कर रही थी, तब मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के जिन्होंने क्वालिफाई किया था, उनका मैंने वीडियोस देखा। तो उनका जो स्ट्रैटेजी था, मैंने किसी का भी स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। आई हैड लाइक sort of jotted down all the things that they had said, and I realized कि मुझे इनमें से ये चीज करनी है। उसमें से मैंने खुद का भी कुछ ऐड किया। तो दैट हैड हेल्प मी अ लॉट। उनका जो सक्सेस स्टोरीज था, उनका ब्रेवरी, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने जैसे कि क्रैक किया इस एग्जाम को, वो सब कुछ एक तरह से मुझे मोटिवेट करता रहा। और दूसरा चीज, मुझे बायोग्राफीज पढ़ना एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। और यूट्यूब में भी मैं बहुत सारे टाइम बायोग्राफीज, वो जो होता है ना छोटा छोटा क्लिपिंग्स, वो सब देखती हूँ। नोबेल प्राइज जब मिलता है, उनका एक इंटरव्यू होता है। मैं पता नहीं क्यों वो मैं काफी सालों से फॉलो कर रही हूँ अभी। उनका वो जो मैं सुनती हूँ, फिर बहुत मोटिवेटेड होती हूँ, क्योंकि वो भी शायद मेरे ही सिमिलर सिचुएशंस में रहे हैं। वो भी शायद कुछ ऐसे वैसे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लेकिन हाउ दे ओवरकेम ऑल ऑफ दोज टू अचीव सो मच, दैट हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन। तो मैं उससे भी खुद को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करती थी। सो आई गेस दीज वर द मेन थिंग्स। एंड अल्टीमेटली इट वाज मोर लाइक कि मैंने रिसर्च को इतना कॉम्प्रोमाइज किया, अब नाउ आई कांट गो बैक। लाइक वो भी गया, ये भी गया, ऐसा नहीं होता। इसको आगे ही जाना पड़ेगा। एटलीस्ट इस बार अगर नेट हो जाए तो शायद नेक्स्ट ईयर जेआरएफ हो भी सकता है। मैंने तो इनफैक्ट जनवरी का जो सेट था वेस्ट बंगाल में, उसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रेपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था एग्जामिनेशन के तुरंत बाद, रिसर्च के साथ साइमल्टेनियसली, क्योंकि अभी रिसर्च में ध्यान देना ही पड़ेगा। सो या मोस्टली दैट। कोई आखिरी मैसेज जो आप स्टूडेंट को देना चाहें? राइट। एक तो चीज मैं बताना चाहूंगी कि बहुत जन जो होते हैं, वो किसी ने कुछ फॉलो किया है, जैसे कि पिछले साल शायद किसी ने क्वालिफाई किया है, उनका जो स्ट्रैटेजी है वो पूरा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो एक माइंडलेस एक्टिविटी है, वो मत कीजिए। आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए। खुद मतलब पहले सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, लेकिन अंडर प्रेशर बेटर एक्ट करती हूँ। तो इन अ वे द ट्यूशंस एंड माय रिसर्च वर्क एंड ऑल माय अदर ड्यूटीज एज अ पीएचडी स्कॉलर, बहुत ही मुझे कम टाइम दिया गया था। हाँ, मतलब देती थी। तो उस कम टाइम में कैसे काम करना है, वो शायद मेरे फेवर में ही गया है। तो टाइम मैनेजमेंट मेरा वैसे हो गया। बहुत लोग होते हैं कि इतना समय पढ़ना ही है हर रोज, मेरा तो वो होता ही नहीं था। तो जब अच्छा लग रहा है उसको तभी पढ़िए।
सेकंड चीज ये है कि नेट मैंने जितना कि समझा है, मैं बहुत ही कम ही समझती हूँ, एज अ मीडियोकर स्टूडेंट ही बोल रही हूँ कि कंसेप्ट्स जो है उसको डेवलप कीजिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन के पीछे अगर भागेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा एक प्रॉब्लम था, मैं बहुत ज्यादा रिटेन नहीं कर पाती थी इंफॉर्मेशन स्पेशली, इसीलिए मुझे लगता था कभी एमसीक्यूज की कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाऊंगी। बट आई सॉर्ट ऑफ मैनेज टू डू इट, मे बी बिकॉज की कंसेप्ट डेवलप किया, और वो कर पाई क्योंकि अच्छा लग रहा था कि मुझे तो ये सब कुछ मालूम ही नहीं है, नया नया कुछ सीख रही हूँ। सो यू नो दैट हंगर फॉर नॉलेज शुड ऑलवेज बी देयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली छोटा छोटा नोट्स बनाइए, क्रिस्प नोट्स बनाइए आप। कंटेंट कम रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत सारा पीवाईक्यूज रिवाइज कीजिए, हो सके तो टाइम से करिए, मतलब you sort of allot some time for your preparation or while you're solving your paper, तो तब अगर करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैं कर पाई हूँ तो आई एम प्रिटी श्योर एनीवन एंड एवरीवन कैन डू दिस। Like I'm not lying, I'm a very mediocre student, but somehow I've like sailed through this thing. And while this feels like a great thing and I really feel relieved, मुझे यही लग रहा है कि अगर मैं कर पाई हूँ तो हर कोई कर सकता है। I'm pretty sure. थैंक यू सो मच सोहिनी फॉर एनलाइटिंग अस, है ना। और मुझे बहुत पूरा भरोसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपकी इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर अपना जीआरएफ क्लियर करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। और जैसे आपने मुझे मैसेज किया था, वैसे आपके पास में बहुत सारे मैसेज आएंगे नेक्स्ट ईयर। आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, काफी लोगों का क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही सटीक है, बहुत ही सदी हुई है एकदम, और बहुत ही ग्राउंडेड है। सबसे बड़ी बात ये की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू सो मच गाइस। आपका आपने हमें सुना, सोहिनी को सुना, और ऐसे ही आप जुड़े हैं हमारे चैनल से, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं जो अभी आने वाली हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। Thank you so much. Bye bye.